Hello students, I welcome you to today's session of learning where we'll start with a new topic that is linear momentum, and afterwards we will be studying about your Newton's second law and third law. Okay, this is these are the topics of your top the chapter that is laws of motion. Okay, so before that we have already known about Newton's first law that we have already covered in the previous lecture. Okay, and we have already we also learnt about some of the contact force and the non-contact force and what are their natures. Okay, we have already done with it in our previous lectures. Okay, so this is also one of the important topic of your this chapter, that is laws of motion, that is second law as well as third law. Okay, and most of the time you'll get a question from your Newton's second law. Okay, on the basis of which you'll also get a question on conservation of momentum that is there in your Newton's third law. Okay, some of the question you will get over there also. Okay, that will be discussing in this session in detail. Okay, so I hope you guys are doing well at your home and also preparing well, as your syllabus is vast, so you need to prepare well, as well as you have to be disciplined while doing the numerical quotient. Okay, make the habit of doing the questions, otherwise you'll be lagged, otherwise you'll be left out with from your you'll be left out from your a goal, that is which is quite vast, that is your physics. As far as your physics quotient is concerned, the number of the syllabus is quite vast, so you'll be lagged out. Okay, so it's always better to practice the questions and the theory part as well as the concept side by side along with the discipline. Okay, so let us begin with your new topic, that is linear momentum. Okay, this is also one of the easiest topic that you can learn. Linear momentum as an it is nothing but it is a product of force, and it is a product of mass and velocity of the body. Suppose a body, certain body is there which is having a velocity of v, it is moving with v meter per second and has a mass of m, so its momentum is m into v. This is a product of mass and velocity, and it is also called as quantity of motion contained in a body. Means how much motion is there in that particular body is called as linear momentum. It is a product of m into v. It is a vector quantity. ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट कितना होगा भाई, इसका यूनिट सीधा केजी एंड मीटर पर सेकेंड होगा. ठीक है, सो इट्स ऐसा यूनिट वुड बी केजी मीटर पर सेकेंड बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity. Okay, as we know it is a vector quantity. How it can be a vector quantity? Because it is nothing but product of mass and velocity, and velocity is a vector quantity and mass is a scalar quantity, and the product of scalar multiplied by vector will always give you vector. So एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, जो प्रोडक्ट जो मिलेगा टर्म आपको वो भी एक वेक्टर होगा. सो दैट्स व्हाई दिस लीनियर मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड. सो अब हम कह सकते हैं किसी भी बॉडी में, सपोज करो अगर टू बॉडीज आर देयर whose mass is m1 and m2. Okay, they are having same velocities. Whose momentum would be greater? Obviously if m2 is greater than m1, the momentum of this body is greater than momentum of this particular body. So likewise you can easily relate. Or one more thing that you must know is how a kinetic energy of a body is related to linear momentum. Suppose I have taken a body whose mass is m and whose velocity is v. So its kinetic energy would be equivalent to half m v square. This would be its kinetic energy. And if I'll multiply this term, and its momentum is equal to nothing but m into v. At this particular case, its momentum is m into v. So if I'll multiply m v square, multiply in the numerator as well as in denominator by m, you'll get half
this is nothing but 1/2 m into v का whole square in the numerator. This is nothing but momentum, so this you will get as p square by 2m. So this kinetic energy is related to this momentum as p square by 2m. Okay, so likewise you can also do the numerical quotient also, and most of the time you will get a numerical from this particular expression, which is nothing but p is equal to m into v. Okay, so let us move on to your next topic, which is change in linear momentum, or change in, simply you can say change in momentum. Suppose if a force is applied and at initial point its body is moving with velocity of v1 meter per second, and after some time its speed becomes v2 meter per second. Initial momentum of the body is m into v1, final momentum is m into v2. Okay, what would be the change? What is change in momentum? Change in momentum is nothing but final minus initial momentum. So final is nothing but p2 minus p1, so you will get change in momentum as m into v2 minus m into v1. So m you can easily m common ले सकते हैं, तो you will get v2 minus, this is nothing but v2 minus v1, and this is delta v, which is nothing but change in velocity. So change in momentum is equal to mass into, it is a product of mass into change in velocity. Okay, so easily आप ये कर सकते हैं, ठीक है. And this expression, what is rate in or rate of change of momentum? What is rate? किसी का rate का मतलब क्या हुआ? That means rate of change of momentum. That means rate का मतलब that is change in momentum per unit time. ठीक है, is called as rate. Rate of change of momentum means कि हर एक सेकंड में momentum कितना change हो रहा है. That is called rate of change of momentum. देखो, अब बॉडी को जो हम पहले लिया था हमने इसी पर्टिकुलर केस में, ये बॉडी यहां से यहां तक जाने में इसको t टाइम लगा, ठीक है. तो रेट क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? m इंटू v2 माइनस m इंटू v1. दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम t. सो एंड दिस इज नथिंग बट m कैन कॉमन ले लोगे तो यू विल गेट v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t. So this is nothing but m into v. This expression is v2 minus v1 is acceleration. ठीक है, तो you must remember the rate of change of linear momentum is a product of mass and acceleration, where acceleration is nothing but change in velocity, which is nothing but delta v by t, which is change in velocity, final velocity minus initial velocity divided by time. So this is the acceleration, and which is nothing but change in velocity per unit time. Okay, and its SI unit is meter per second square. ये इसका SI यूनिट होगा, ठीक है. So you can easily say the rate of change of linear momentum is equivalent to product of mass and velocity. मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा, and acceleration is nothing but change in momentum per unit time. Okay, so this rate of change of momentum is also nothing but your force applied. ठीक है, that is nothing but the Newton second law that we will gonna study now. ठीक है, अब हम थोड़ा न्यूटन सेकेंड लॉ भी स्टडी करेंगे, which is the same expression that we have that we are using above. देखो सेम चीज है. Second law states that the rate of change of momentum m into v of a body is directly proportional to the force applied on it, and this change in momentum takes place in the direction of applied force. That means कि अगर कोई बॉडी है, इनिशियल स्पीड इसका v1 है, देखो इसका इनिशियल स्पीड कितना है v1, ठीक है, उस पर फोर्स लगाया, ठीक है, तो जो फोर्स होगा इज डायरेक्टली, फोर्स अप्लाइड ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, रेट दिस इज dp इज नथिंग बट स्मॉल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन टाइम. dp इज वेरी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो अब हम फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम. दिस इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, दिस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. ठीक है, so and the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the force applied on it, and this change takes place in the direction of applied force. और ये जो linear momentum का जो change हो रहा होता है वो
उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होगा. सो ये भी याद रखना है आपको, चेंज इन लीनियर मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होगा. ओके, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम. मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी. ठीक है, m इंटू वी के बराबर होगा मोमेंटम. सो मास कॉमन लेंगे तो दिस इज नथिंग बट v, वेलोसिटी अंदर ही रह जाएगा, dv बाई dt. दिस dv बाई dt इज, dv means change in velocity per unit time, is called as acceleration, which is nothing but rate of change of velocity. ये हम ऑलरेडी अभी हम पढ़ चुके हैं. डेल्टा v और ये dv होता है बहुत स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी. डेल्टा हो गया मीन्स एवरेज चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, सो एक्सेलरेशन जो पहले बताया था डेल्टा v बाई टी, दिस इज एवरेज चेंज इन वेलोसिटी, मीन्स कुछ टाइम लगाएगा. ठीक है, और ये स्मॉल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट स्मॉल dt बाई dt, dv बाई dt भी लिख सकते हो आप. स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम. छोटे से टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. ओके, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक k जुड़ जाता है. हमेशा याद रखना, कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं हम तो एक कांस्टेंट जुड़ता है. ठीक है, उसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में 1 होता है. ठीक है, SI सिस्टम एंड CG सिस्टम में ऐसा हम यूनिट चूज करेंगे जिसमें इसकी k की वैल्यू 1 हो. ठीक है, सो हमेशा याद रखो, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, एंड दिस फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. यही रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है. क्यों? क्योंकि k की वैल्यू 1 होती है. ठीक है, एंड दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, सो फोर्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज, जो हम फोर्स बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, चेंज इन, जो ये dp इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम. तो इनिशियल मोमेंटम इस बॉडी का कितना था, m इंटू वी आई. फाइनल मोमेंटम m इंटू वी एफ. तो m इंटू वी एफ माइनस m इंटू वी आई डिवाइडेड बाई टाइम. t लगा टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो यू विल गेट f एंड टू, तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, विच इज़ नथिंग बट m कॉमन ले लेंगे तो v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन. तो v फाइनल माइनस v इनिशियल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. तो दिस इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ. फोर्स will always produce an acceleration within the body, and this acceleration direction is in the direction of force applied. किसी भी बॉडी पे अगर नेट फोर्स लगेगा तो ये मूव करेगा. ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन में ही इसका एक्सेलरेशन होगा. एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन दोनों सेम होता है. ठीक है, या मास कांस्टेंट है इसलिए आप ये एक्सप्रेशन भी आप यूज कर सकते हैं. ओके, और एक चीज़ और याद रखें, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी, नहीं चेंज इन लीनियर मोमेंटम, विच इज नथिंग बट इम्पल्स. ये भी एक्सप्रेशन याद रखें. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्पल्स, एंड विच इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. ठीक है, ये भी एक एक्सप्रेशन याद रखेंगे. सपोज करो किसी पे फोर्स लगता है बहुत कम समय के लिए, लाइक आप बॉल को हिट करते हैं बैट से, तो उस पर जो फोर्स लग रहा होता है उसको, जिससे की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज होगा, वो बहुत कम समय के लिए होगा. ठीक है, या इम्पैक्ट, कोई भी इम्पैक्ट जहाँ पे होता है वहाँ पे बहुत कम समय के लिए फोर्स लगता है और एकदम से मोमेंटम चेंज होता है बॉडी का. दैट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज इम्पल्स. ठीक है, तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. तो न्यूटन सेकंड इज अ ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स. ठीक है, इम्पल्स को आई से डिनोट कर लेंगे हम. फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम is nothing but Newton second. Newton second is a unit of impulse. Okay, एक एक्सप्रेशन हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सपोज करो किसी भी बॉडी पे आप फोर्स नहीं लगता, लाइक न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या हो रहा था, अगर फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी कंटिन्यूसली या रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा. ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा. ठीक है, तो उस पर एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा उसका. तो वही चीज़ है, अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स नहीं लगता है, सपोज एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स ज़ीरो है, मास ज़ीरो नहीं हो सकता बॉडी पे, तो एक्सेलरेशन को भी ज़ीरो होना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रोडक्ट ऑफ दीज टू विल गेट यू ज़ीरो. ठीक है, तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो होना पड़ेगा. दैट मीन्स कि या तो वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहेगा, या तो एक्सेलरेशन, या तो वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए.
10 मीटर पर सेकेंड, अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सब चीज़, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसका कितना होगा, 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, विल गेट 0। तभी 0 आएगा जब, तो दैट मीन्स कि इसमें फोर्स 0 है। तो न्यूटन सेकंड लॉ में भी, न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी हमने पढ़ा था, अगर बॉडी पे फोर्स 0 होता है, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, ठीक है, इसकी स्पीड ना बढ़ेगी ना घटेगी, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन, सो दैट मीन्स कि फोर्स 0 है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जितना, सो दैट मीन्स अगर हम इस सिस्टम को हम कंसीडर करें, यहाँ पे फोर्स 0 करें, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये 0 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 0 इंटू टाइम इज इक्वल टू 0 is nothing but P final minus P initial. So you will get P final is equal to P initial. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी भी सिस्टम पे अगर फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों सेम होगा, ठीक है। सच इज केस फॉर सच इज ए केस फॉर गन सिस्टम, ठीक है। गन सिस्टम में क्या होगा, गन बुलेट, इफ अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, ठीक है, उसमें हम एक्सटर्नल बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, सो जितना बुलेट का जो इनिशियल मोमेंटम जो गन का है वो, क्योंकि वो गन ना पीछे जा रहा है ना आगे जा रहा है, ठीक है, फायर करने से पहले उसकी गन की वेलोसिटी 0 थी तो इनिशियल मोमेंटम इज 0, ठीक है। फायर करने के बाद क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स उसमें नहीं लगा है, कोई बाहर से फोर्स आपने अप्लाई नहीं किया है, तो बाद में जितना मोमेंटम होगा बुलेट का और जो रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन का जो मोमेंटम होगा वो दोनों इक्वल होंगे एज कम्पेयर टू इनिशियल मोमेंटम। तो हमेशा याद रखेंगे ये, अब हम ऑलरेडी आपको मैं एग्जांपल दूंगा इसमें न्यूटन थर्ड लॉ में, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ आपको ये पता होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल टू दैट सिस्टम वेयर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्टिकुलर बॉडीज इज 0। तो जब नेट फोर्स 0 होगा तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों सेम होंगे बॉडी पे, ठीक है। एक थोड़ा सा और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको इसी में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देखो, सपोज करो suppose you have a ball which was initially moving with speed of v1 having mass m1, and there is another ball whose mass is m2 and initial velocity, initially it was at rest, okay. After some time this block, ये क्या होगा, ये this block will collide with each other, ठीक है, ये collide करेगा, तो collision, because of collision इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, वो हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके थे, ठीक है। कोलिजन की वजह से इस पे बैकवर्ड फोर्स लगेगा F और इस पे फॉरवर्ड फोर्स लगेगा F, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ विच कोलिजन की वजह से M1 ब्लॉक है, दिस इज M2 ब्लॉक, ठीक है। आफ्टर सम टाइम बिफोर, दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन, M2 is moving with speed of V2, okay, and this is moving with speed of V1 dash M1, because कि इस पे फोर्स बैकवर्ड लगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, M2 की स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, हिट गया, एंड दिस फोर्स इज नथिंग बट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दीज आर इंटरनल फोर्स, कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया आपने, तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि इसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना है, m1 v1 plus m2 into 0, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो इसका वेलोसिटी 0 है तो इसका मोमेंटम 0, तो इनिशियल मोमेंटम इज m1 into v1 के बराबर ही हो गया। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम वुड बी इक्वल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, पहले देख लेते हैं फाइनल मोमेंटम कितना होगा, m1 into v1 डैश प्लस m2 into v2, ठीक है, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स लगाया नहीं है, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है। तो यू विल गेट m1 v1 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2। सो इस एक्सप्रेशन से आप इजीली
एक चीज़ नहीं गिवन है तो दूसरी चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सप्रेशन को आपको निकालना आना। सो इजीली आप निकाल पाएंगे एक्सप्रेशंस, ठीक है, थ्रू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के थ्रू इजीली आप एक्सप्रेशंस निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ। इसके थोड़े थोड़े और एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ, लाइक इम्पल्स वाला चेंज इन इम्पल्स। देखो न्यूटन सेकंड लॉ का एग्जांपल कैसे हो गया, दैट मीन्स कि बॉडी पे फोर्स लगा और वो एकदम से मूव करने लगा, या बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, ठीक है, उसकी वजह से वो रेस्ट में आ गया। लाइक कैचिंग अ बॉल, कैचिंग अ बॉल। सो होता क्या है, आप हैंड से कैच कर रहे हो, तो सपोज करो ये v वेलोसिटी से आ रहा था m इंटू वी, आप कैच करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे हाथ को लेके, ठीक है, वहाँ पे अब फाइनली इसका मोमेंटम को आप ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि हाथ पे जैसे ही वो आएगा बॉल आपके हाथ में, ठीक है, उसका मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, कैच कर रहे हैं आप। तो कैचिंग अ बॉल, इन कैचिंग अ बॉल योर हैंड इज अप्लाइंग अ फोर्स अगेंस्ट द मोशन ऑफ दिस बॉल, ठीक है, तो ये फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो वो उसको रेस्ट में ले आएगा। सो द कैचिंग ऑफ द बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ, और यू कैन से इज एन एग्जांपल ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स मीन्स यहाँ पे सडनली बॉल रेस्ट में आ जाता है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, फाइनली मोमेंटम जीरो हो गया इसका, इनिशियल मोमेंटम वाज m इंटू वी, तो बहुत कम समय में ही एकदम से चेंज हो जाएगा मोमेंटम। तो दैट इज इम्पैक्ट इज वेरी, तो इम्पैक्ट इसलिए ज़्यादा ना हो, आपके हाथ पे इम्पैक्ट ज़्यादा ना हो, इसलिए आप हाथ थोड़ा पीछे करते हैं, दैट मीन्स कि टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ा रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी माइनस जीरो, या जीरो माइनस m इंटू वी करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। इस बॉल पे क्योंकि नेगेटिव फोर्स लगेगा अब इधर डायरेक्शन में, तो इसलिए माइनस आ रहा है। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो अगर मैं टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ा दूँ, मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, ताकि इसकी स्पीड ज़ीरो हो जाए बॉल की, ये बढ़ा दूँ तो फोर्स कम हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि आपको फोर्स कम लगाना, आपके हाथ पे फोर्स कम लगेगा या बॉल पे फोर्स कम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, एकदम से अगर कैच करेंगे तो आपके हाथ पे एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, ठीक, दैट मीन्स इम्पैक्ट और इम्पल्स ज़्यादा होगा, ठीक है, इम्पल्स ज़्यादा होगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, टाइम ऑफ इम्पैक्ट को बढ़ा देने के लिए पीछे थोड़ा सा हाथ करेंगे, ठीक है, ताकि वो आपके इम्पैक्ट को इम्पैक्ट क्या हो जाए, इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है, या इम्पल्स थोड़ा कम हो जाए, तो फोर्स आपको कम लगे हम आपके हाथ पे, ठीक है, तो आपका हाथ डैमेज ना हो पाए, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कैचिंग अ बॉल। और भी एग्जांपल दे सकते हो, नॉट ओनली कैचिंग अ बॉल, इफ़ यू आर जंपिंग, इफ़ यू सडनली कम एंड, ठीक है, इफ़ यू जंपिंग एंड सडनली हिट्स द ग्राउंड, इफ़ यू हिट द ग्राउंड आफ्टर जंपिंग, तो उसमें भी क्या होगा, मोमेंटम आप इनिशियली स्पीड से आप आ रहे होंगे, ठीक है, एकदम से ग्राउंड को हिट करेंगे तो आपका मोमेंटम फाइनली सडनली ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, तो इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, और भी ले सकते हो कि आप, इट इज़ ईजियर टू, इफ़ अ ग्लास इज हिट on a ground, suddenly it burst, ठीक है, and it will broke down, okay, so as compared to if you are throwing a glass on some cushion, so that means it won't break। so उसमें होता क्या है, तो जब वो ग्राउंड को हिट करता है तो इम्पैक्ट का टाइम बहुत कम होता है, तो इसीलिए वो इम्पैक्ट ज़्यादा लगेगा, ठीक है, ग्लास को, और वो ब्रेक हो जाएगा। अगर आप कुशन को पे, या ग्लास बॉटल या ग्लास जो भी है, ठीक है, ग्लास कंटेनर को आप एक कुशन पे यू आर हिटिंग इट ऑन कुशन, तो क्या होगा, कुशन इसके फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, कुछ थोड़ा सा आगे जाएगा, ठीक है, ये आपका इस पे हिट करने पे, तो इनिशियल वेलोसिटी वाज v, ठीक है, ग्लास बॉटल की दिस, तो फिर क्या होगा, ग्लास जो होगा ब्रेक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बढ़ा दिया आपने, थोड़ा सा टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ा दिया। सो दैट्स वाई this glass won't break if you are throwing the glass on cushion as compared to if you are throwing it on ground,
Okay, so these are the some of the example of change in linear momentum. You can easily find out such an example in your day to day life. इधर उधर आप देखेंगे day to day life में easily find out कर सकते हैं. Okay, so let us move on to your that is न्यूटन्स थर्ड लॉ विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ज़्यादातर आपको इसमें एग्जाम्पल पढ़ना है. ठीक है, और मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल भी बताऊंगा लाइक गन प्रॉब्लम्स, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, कोलिजन वाले कोलिजन सिस्टम में आप ये न्यूमेरिकल ही लगाएंगे, अप्लाई करेंगे. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे. जहाँ भी अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सेज if an external force applied on the system is zero, so the initial momentum of the system must be equal to final momentum. तो जितना initial momentum था उतना ही final momentum होगा. कंजर्व कर दो एंड इक्वेशन इजिली निकाल सकते हैं आप. जरूरी नहीं ये ब्लॉक आपका जीरो ही रेस्ट पे हो, ये ब्लॉक भी v2 स्पीड से मूव कर सकता है. तो और ये फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा इसका v2 डैश आफ्टर हिटिंग. ठीक है, तो आप इजिली इसमें यहाँ पे अगेन यहाँ अप्लाई कर सकते हो m2 इंटू वी टू डैश, नो m2 इंटू वी टू. ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा फाइनली m2 इंटू वी टू डैश, क्योंकि इसकी फाइनल स्पीड v2 डैश हो गई. ठीक है, सो लाइकवाइज यू कैन इजीली फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. ठीक है, यू कैन डू ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू योर न्यूटन्स थर्ड लॉ. वो भी इंपॉर्टेंट है भाई. ठीक है, थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं. आपको थोड़ा एग्जाम्पल बताएंगे एंड डेफिनेशंस वगैरह थोड़ा सा बताएंगे. न्यूटन्स थर्ड लॉ. Newton's third law. It says, Newton's third law says, to every action there is equal and opposite reaction, and these action reaction pair always acts on two different bodies. Okay, ये definition हुआ इसका. इसका मतलब क्या हुआ देखो. It says कोई भी action का हमेशा reaction होगा. ठीक है, एक्शन का हमेशा रिएक्शन होगा. दैट मीन्स और दिस एक्शन रिएक्शन पेयर ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. ठीक है, एंड दे आर ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे विल ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ. इसका मतलब देखो, अगर ये एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है, सपोज दिस इज नॉट अ ब्लॉक, दिस इज अ बुक हुज मास इज 1 kg which is on a table. Okay, and it will tend to move downward with a force which is equivalent to its weight, which is nothing but m into g. ठीक है, acceleration due to gravity which is 1 into 9.8. जनरली हम 10 ले लेते हैं. acceleration due to gravity you will get 10 न्यूटन. तो 10 न्यूटन से नीचे जाना चाहेगा, but it is not going in the downward directions. So this table is also applying a force in upward direction, which is nothing but normal force, which is nothing but also called reaction force, which is equivalent to m into g. सेम फोर्स के बराबर होगा. तो जितना आप टेबल पे फोर्स लगाएंगे, टेबल भी आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहा होगा. ठीक है, ठीक है. सो दैट मीन्स जब तक कि ये रेस्ट में है बुक, ठीक है, तो जितना आप वेट लगाएंगे उतना ही टेबल आप पे फोर्स लगाएगा. दैट इज कॉल्ड रिएक्शन. तो एक्शन का रिएक्शन लगा. ठीक है, तो जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन. एंड दिस एक्शन रिएक्शन पेयर ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, एंड हियर दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 10 न्यूटन. ठीक है, सो एक्शन और रिएक्शन निकला. सो दीज आर द एग्जांपल न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है, सो लाइकवाइज बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं आप इसमें. ठीक है, सो सेकंड एग्जांपल्स और भी देख सकते हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं लाइक गन सिस्टम. ठीक है, लाइक रॉकेट प्रोपल्शन. रॉकेट का पहले प्रोपल्शन देख लेते हैं. रॉकेट में क्या होता है भाई, देखो रॉकेट में नोजल से गैस निकल रहा होता है. ठीक है, तो गैस क्या करेगा, गैस जो एग्जॉस्ट गैस is moving in a backward direction, because of which the rocket will have a upthrust in the forward direction. गैस बाहर निकलने की वजह से इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में थर्स्ट लग रहा है. दैट मीन्स फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो एक्शन का रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, दिस इज रिएक्शन फोर्स. तो एक्शन की वजह से रिएक्शन हो रहा है क्योंकि अभी इस पे कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है. ठीक है, सो दिस एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट इज जीरो. So it is moving in the forward direction only because of the
फोर्स प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द एग्जॉस्ट गैस, जो एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन थ्रू इट्स नोजल, बिकॉज ऑफ विच इट विल मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सेम इज द केस if a balloon is filled with air, ठीक है, बलून को एयर में फिल करेंगे हम, और सडनली इसमें से क्या करो, इसको ओपन कर दो यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें से गैस निकलेगा, ठीक है, और ये बिकॉज ऑफ मोशन, बिकॉज ऑफ द आउटवर्ड मोशन ऑफ द गैसेस, दिस बलून विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है. लाइकवाइज डिफरेंट एग्जाम्पल्स आर देयर दैट यू कैन सी इन योर डे टू डे लाइफ, ठीक है, जहाँ पे एक्शन का रिएक्शन हो जाए, ठीक है. सो एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, ठीक है. एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लेना यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है, दैट इज रिकॉलिंग ऑफ अ गन. सपोज करो एक गन सिस्टम लेता हूँ मैं, गन एंड बुलेट सिस्टम. ये गन है, देखो कितना बढ़िया गन बनाया है, देखो कितना बढ़िया से गन बनाया. ओके, ये भी उल्टा बना दिया मैंने, ठीक है, ट्रिगर उल्टा बना दिया है, ठीक है. ट्रिगर कुछ इस टाइप से होगा, अब ट्रिगर करेंगे दबाएंगे, ठीक है. तो सपोज करो इसमें बुलेट है एक अंदर, ठीक है, जिसका मास है स्मॉल एम, और ये टोटल गन है जिसका मास है कैपिटल एम, ठीक है. तो टोटल बुलेट का मास, बुलेट एंड गन का मास कितना होगा, टोटल एम प्लस स्मॉल एम, बुलेट प्लस गन. इनिशियल मास वाज दिस, ठीक है. अब एक्सटर्नल फोर्स बाहर से कोई नहीं अप्लाई हुआ है, दिस गन विल मूव ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स. अब क्या होगा, देखो इनिशियली दिस सिस्टम वाज एट रेस्ट, तो इसका वेलोसिटी 0 था, तो दिस वाज इट्स इनिशियल मोमेंटम, ओके, विच इज m इंटू एम प्लस वी इंटू 0, क्योंकि इसका भी वेलोसिटी 0 था और गन का भी वेलोसिटी 0 था, तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख सकता हूँ m इंटू 0 प्लस स्मॉल m इंटू 0, विच विल ऑल्सो गेट 0. तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन वाज 0. आफ्टर फायरिंग, आफ्टर ट्रिगरिंग, जैसे मैं एकदम ट्रिगर करता हूँ, ठीक है, गन को, तो क्या होगा, एकदम सडनली क्या होगा, इस पे फॉरवर्ड फोर्स लगेगा, तो एक्शन का रिएक्शन लगता है, तो इस पे बैकवर्ड फोर्स लगेगा, गन पे बैकवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है. उस पे स्प्रिंग इसको फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा, हिट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए बुलेट विल मूव फॉरवर्ड, बिकॉज ऑफ विच इट विल, दिस गन विल टेंड टू मूव इन रिकॉइल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो गन क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल करेगा. सपोज करो ये रिकॉइल किया, कैपिटल एम इसका मास था, रिकॉइल किया, गन वी, कैपिटल वी इज द रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ दिस गन, ठीक है, और ये बुलेट मूव किया, भाई बुलेट आगे गया, ठीक है, इसका स्मॉल मास है m एंड स्मॉल वेलोसिटी v है, इतने वेलोसिटी से फॉरवर्ड आगे मूव किया. सो दैट मीन्स दिस इज बिफोर ट्रिगरिंग ऑफ अ बुलेट and this is after triggering of a bullet. What will happen, this bullet will move in forward direction with v speed, small v, and this gun will be recoiled with the velocity of m into v in backward direction. Okay, so आप इसी सिस्टम को आप फाइनली मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, m into small v plus capital M into capital V, which is minus, because momentum is a vector quantity, and if this is your forward direction is positive, then your backward direction has to be negative. ठीक है, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, माइनस एम इन वी. ठीक है, तो momentum in the backward direction, in the backward direction is m into v, because it is in backward direction, so it has to be negative. ठीक है, अगर forward direction को positive लोगे तो backward direction negative आ जाएगा automatically. तो product this final momentum is nothing but sum of these momentum of this system plus momentum of this system. ठीक है, तो m into v plus minus m into v, you will get m into v minus capital M capital V. This is the final momentum you will get. And the external force acting on the system is 0. ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों इक्वल होंगे, तो 0 मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल, so इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस कैपिटल M इंटू वी. ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्योंकि दैट इज इक्वल टू 0. तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन विच इज इक्वल टू m इंटू वी डिवाइडेड बाय कैपिटल M. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन. ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन. तो गन को पीछे
कितना रिकॉइल्ड वेलोसिटी होगा, कितने वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है। सो दिस शुड बी इट। अब ऑब्वियसली एक चीज़ और है, देखो तो गन ज़्यादा भारी होना चाहिए कि लाइटर होना चाहिए, वो आप कैसे पता करेंगे? तो ऑब्वियसली बात है, तो गन का जो आपका मास है कैपिटल एम, वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए एम, तभी आपका ये वेलोसिटी जो रिकॉलिंग वेलोसिटी है कम होगी। क्योंकि अगर आप इसको आपको पकड़ के रखना है गन को साथ में, ठीक है, तो रिकॉलिंग वेलोसिटी हैज़ टू बी रिड्यूस्ड। फॉर दैट दिस गन हैज़ टू हैव ग्रेटर मास, ठीक है। तो इसलिए राइफल का भी वही सिस्टम है। राइफल को जो आप सोल्जर्स वगैरह जो आप फायर करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप बैकवर्डली आप कंधे पे लगाते हैं इसको, ठीक है, शोल्डर से अटैच होता है, ठीक है, ताकि ये रिकॉइल हो, वेलोसिटी रिकॉइलिंग पीछे की तरफ आता है ये गन, ठीक है, ये राइफल, ठीक है। एंड देन राइफल का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, दैट्स वाई वो उसका रिकॉइलिंग वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। So because recoiling velocity of a gun is inversely proportional to mass of this gun, ठीक है, तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही recoiling velocity भी कम होगी, ठीक है। So likewise you can easily say that the mass of the gun has to be more in order to have less recoiling velocity, ताकि वो आपको हिट ना करे, बैकवर्ड डायरेक्शन रिकॉइलिंग वेलोसिटी वो ज़्यादा ना हो, ताकि आपको वो हिट ना करे गन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, वेर यू कैन इजीली फाइंड आउट द रिकॉलिंग वेलोसिटी ऑफ अ गन, okay, and you can also by the application of conservation of linear momentum you can easily do the numerical quotient also, okay. So this is all about Newton's third law, second law, as well as different examples in day-to-day life where you can easily relate such Newton's laws, okay. So I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा and you do practice the questions which are there in your textbook, okay. So with this we'll end up today's session. Thank you.